Before starting the class, I just want to ask some points. Let me tell you all that what we are going to do today. I already explained it once, but let me tell you once again that we are going to do the product decision and one case study on LG. And I just want to ask some basic questions what we did in the last class. Just tell me who is going to tell me about green revolution and white revolution in brief. Who is going to tell me what we did in the last class? Yes, Piyush. First, tell me about green revolution, and after that, I will ask maybe white revolution from other students. Tell me what is the meaning of green revolution and when it is started and what is the objective behind that? And Green Revolution 1965 launched by Government of India with the rules of Janesh Swaminathan, father of Green Revolution in India world, Norman Borlaug, that was started in three states, state Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh, and two seeds variety HIV mechanism, organization, and irrigation. What is the full form of HYV, Piyush? High yielding variety. Very good. Okay. So what is the objective behind this green revolution? Anyone else who is going to tell me about what is the objective of green revolution? Yes, Abhishek. Very good, Piyush. Anyone else who is going to tell me what is the objective behind? Ma'am, the main objective is to increase the agriculture productivity and बस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये हुआ था और जो भी इंडिया में पहले स्टार्वेशन का सिचुएशन था उससे ये बहुत हेल्प किया था फाइट करने में और मैम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टार्टिंग से पता है? हाँ बोलो। Ma'am, Green Revolution started in 1996 by the S. Swaminathan. In which year? In which year that was started? Ma'am, 1996. 1996. Yeah. Anyone else who is going to tell me about when the Green Revolution is started? Yes, Abhishek. Ma'am. Yes, Abhishek. 1965. Exactly, 1965. Priya, it was started in 1965. Okay. ठीक है. Next. आगे बोलिए Priya. Green Revolution was started in 1965 by S. Swaminathan in India. S. Swaminathan, known as the father of Green Revolution in India. In Green Revolution, the farmer used modern techniques like H5V seeds, fertilizer, pesticides, tractor machineries for doing agriculture. Green Revolution was took under the three states like Punjab, Haryana, and western part of Uttar Pradesh. In this, the grains which was harvested like wheat, mostly the wheat and rice were harvested through this under this revolution. And okay. Who is going to tell me about white revolution? Dr. Varghese Kurin, father of white revolution, and features of adopting new husbandry and started in 1970. Husbandry techniques, animal husbandry techniques. Yes, ma'am. And started in 1970 after Green Revolution.
to 64 to 65 age capital development program and launched objective creative of milk production and livestock. Okay. Okay, good. But still, what is the basic objective toward starting this initiative, Green Revolution, that after independence, India was not even sufficient in food production, right? India was not sufficient in food production. Because of this reason, इस reason की वजह से एक्चुअली में इम्पोर्ट कर रहा था इंडिया दूसरे कंट्रीज से, लाइक यूएस एंड अदर कंट्रीज वाज इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स इन इंडिया, एंड बहुत ज्यादा फेमीन्स और स्टारवेशन के केसेस थे इंडिया में, राइट? तो इसकी वजह से बिकॉज दे वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड. And green revolutions give a very बोल सकते हैं very positive impact in the production facilities, but still there are some advantages as well as disadvantages. For starting, for using the HYV seeds, the people have to use the we can say the capital amount to buy that particular seeds and all, because that is of a high cost. Normal cost से ज्यादा cost था उसका, ठीक है? So because of these reasons, इस reasons की वजह से green revolution को लाया गया. Advantages and disadvantages क्या है green revolution के? Anyone? Increasement of food grain, and it generates employment, and it gives more grain in a small land. And disadvantages is it affects the land due to the use of high fertilizers and chemicals, and it suffer losses also. What are the basically advantages of green revolution? First of all, productions increases, ठीक है? Food grains का production increase हो गया, first point. The second one is like after this, आप basically दूसरे country में we are not dependent for the imports, right? थर्ड जो है कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जैसा अभिषेक ने बोला, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? अब जो फार्मर्स हैं, और इसके लिए एक चीज और भी स्टार्ट हुआ कि हमारे इंडिया में क्रेडिट सिस्टम भी शुरू हो गया. क्रेडिट सिस्टम में लोन वगैरह, पैसा वगैरह जो है, जस्ट वेट फॉर अ सेक, बिकॉज ऑफ यूजिंग द fertilizers, too much fertilizers, we are dependent on the artificial things, that because of that barren lands जो थे वो बहुत ज्यादा बन रहे थे, और रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है? सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. लेट्स मूव टुवर्ड द केस स्टडी ऑफ एलजी. केस स्टडी पढ़ते हैं एलजी का, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट डिसीजन. अच्छा, आप लोगों ने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है ना? सब लोगों ने? आप लोगों को मैंने मार्केटिंग मिक्स कराया था, राइट? Yes, ma'am. What was that? What is the meaning of marketing mix? Ma'am, price, place, or What is marketing mix? Yes, ma'am. Marketing mix. There are 4 phases: price mix, promotion mix, place mix, product mix. Exactly. See, marketing mix is a kind of tool which is used by the marketers and company to sell the goods and services in the market and satisfy the final or end user who is consumer, right? So that is marketing mix. There are 4 P's for doing this whole scenario. There are 4 tools or 4 P's, that is product, price, place, and promotion. So today we are going to do the first P, that is product, because we earlier did it in a very brief manner. So today we are going to do it in an elaborative manner, right? So तो इसमें आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? लगभग 2002 में, इट्स अबाउट इन 2002, जो कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह की कंपनीज जो थी इंडिया में स्टैब्लिश हो रही थी. लगभग 90s से प्रॉपरली इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो है स्टैब्लिश होना शुरू हुई थी, ठीक है? अर्बन ग्रोथ जो था वो तो नॉर्मल था एज कंपैरेटिवली टू रूरल एरियाज. अर्बन ग्रोथ अच्छा खासा था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो था वो एस्टैब्लिश हो गया था.
बट इन द केस अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में एज सच इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पहुंचे नहीं थे प्रॉपरली। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बेसिकली एलजी कंपनी जो थी, एलजी कंपनी उसने स्टार्ट किया व्हेन दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन अर्बन एरियाज, दे स्टार्टेड वर्किंग इन द रूरल एरियाज एज वेल, but they knows that there is a very vast difference between urban areas consumers and rural areas consumers. So they decided to sell the television first. television के साथ उन्होंने rural areas में enter किया LG ने, but जो normal वो urban areas में सेल करे थे same as it is वो नहीं था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर वो कुछ चेंजेस लेकर आए थे। LG जो था, LG का फुल फॉर्म सबको पता है? Yes, ma'am. क्या है? Life's good. वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर जो था रूरल कंज्यूमर के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आए वो। ठीक है, उन्होंने एक यूनिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। उन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो रूरल डीलर्स थे, एलजी इंडिया के ब्रांच के ऑफिसर्स के जो थे डीलर, उनके साथ पहले उन्होंने ये डील किया कि रूरल एरियाज में जितने भी थोड़े बहुत डीलर्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट एरियाज वगैरह में अवेलेबल हैं, उनसे उन्होंने बात करना शुरू किया कि वी आर जस्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर द रूरल कंज्यूमर्स। वो उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने बेसिकली 2005 में लगभग जो भी वो टेलीविजन वगैरह से शुरू किया, तो वो टेलीविजन वगैरह में चैनल्स कम कर दिए। ठीक है, चैनल्स वगैरह जो उनको डिडक्ट कर दिया, कम कर दिया, ताकि उनको कॉस्ट कम पड़े। ठीक है, और बाद में लगभग उन्होंने कुछ मतलब ये बस इस तरीके के चेंजेस लेकर आए। जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंज था वो यही था। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जो था उनका जो सेल था वो लगभग 2003-4 में जहाँ 16% था, वहीं 2005 के बाद लगभग 24% हो गया उनका सेल। ठीक है, और ये बस वही लेकर आए थे कि जो टेलीविजन में जो भी उनमें टेलीविजन वगैरह जो भी था उसके चैनल्स वगैरह बदल दिए और थोड़ा सा सस्ता कर दिया, तो प्राइस जो सा सस्ता कर दिया। और रूरल एरियाज में कंज्यूमर को 15 दिन का ट्रायल भी दिया, यानी 15 दिन आप उसको देखिए, चेक कीजिए, ट्रायल पीरियड पे रखिए। उसके बाद फिर इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू कैन डू द अदर प्रोसेस फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी वो लेकर आए कौन, एलजी टेलीविजन इन रूरल एरियाज। एंड आफ्टर दैट द प्रोडक्शन, वी कैन से द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनीज प्रोडक्ट वाज इंक्रीज और जंप्ड फ्रॉम 16% to 24% within 2 to 3 years। ठीक है, तो ये एक तरीके का इनका इनिशिएटिव था एलजी टेलीविजन का। क्लियर है? और क्रिकेट, आप लोगों को तो पता होगा कि क्रिकेट का हमेशा से जो था एक डिमांड रहा है, चाहे वो अर्बन एरिया और रूरल एरिया हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि रूरल एरियाज में टेलीविजन के साथ शुरुआत किया गया, क्योंकि द पीपल इन द रूरल एरियाज आर डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर टेलीविजन। पहले क्या होता था, गांव में एक टीवी होता था किसी के घर में, पूरा मोहल्ला वहीं बैठ के देखता था, राइट? तो कहीं ना कहीं डिमांड एलजी समझ में आ गया कि इफ वी आर गोइंग टू सेल द रेफ्रिजरेटर फर्स्ट, maybe it is not, maybe it will not sold, right? So because of this reason they started with the television, because of the craze of cricket in the rural areas as well, and they little bit they customize the product, थोड़ा सस्ता बनाने की कोशिश किया गया एंड प्राइस थोड़ा नॉर्मल रेट से सस्ता किया गया। ट्रायल पीरियड्स वगैरह भी उनको दिया गया, 15 दिन का ट्रायल पीरियड वगैरह। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द टेलीविजन वाज सोल्ड इन द रूरल एरियाज। सो दिस इज द वे, ये एक एलजी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाया। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस स्टडी और वेरी वेरी स्मॉल केस स्टडी, दैट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द रूरल एरियाज we just need to understand the rural market, that what kind of product they are demanding and how much cost they are willing to pay for the particular goods के लिए कितना पे करने के लिए वो रेडी है मार्केट में। ठीक है, उनका डिमांड किस प्रोडक्ट का ज्यादा है और हम किस तरीके से कस्टमाइज करके उनके नीड को फुलफिल कर सकते हैं, एंड व्हाट एलजी डिड, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द अनदर टॉपिक, जो प्रोडक्ट डिसीजन जो था उसके बारे में। ओके, ये टॉपिक ये प्रोडक्ट कंसेप्ट्स और क्लासिफिकेशन क्या है। सो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हमारे पूरे इंडिया में हम लोग दो तरीके से डील करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ। कोई भी मार्केटर्स दो चीजों में डील करता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? सो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करते हैं, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। ठीक है, तो टैंजिबल गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नोटबुक्स हो गया, बॉटल हो गया, बुक हो गया, ईयरफोन हो गया, मोबाइल हो गया,
ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टैंजिबल, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और कई बार उसकी क्वालिटी को भी एनालाइज कर सकते हैं बाय टचिंग इट. एग्जाम्पल के लिए, जब व्हेन वी आर बाइंग अ क्लोथ, देन वी कैन टच इट stuff and we can say that the quality, that is cotton, that is silk, and the quality of the that particular garment is very fine, right? So tangible का मतलब क्या होता है? जो basically visible होता है. and I think कि आप लोगों ने accounts में tangible and intangible जैसे goodwill वगैरह पढ़ा होगा, right? Now the second one, जो second क्या है? That is intangible goods, and intangible goods also known as services which we can't see. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें. एजुकेशन हो सकता है, यानी टीचिंग हो सकता है, राइट? दैट इज नॉट विजिबल. वी कैन एक्सपीरियंस इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट, बट वी कैन नॉट टच द टीचिंग, राइट? टीचिंग को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कोई फिजिकल उसका कोई आउटलाइन नहीं है जिसको हम देख सकते हैं. टीचिंग हो गया. फिर आपका ये क्या बोलते हैं, मेडिसिन, जो जीएसटी काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपको काउंसलिंग देते हैं, ठीक है, आइदर दैट इज फॉर जीएसटी, दैट इज फॉर टैक्स. फिर मेडिसिनल जो होते हैं या फिर मेडिकल काउंसलर्स होते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विसेज, यानी जैसे बैंक्स क्या देता है? सर्विस देता है, राइट? तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विसेज. सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, राइट? क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको टैंजिबल एंड इनटैंजिबल? ओके. अब हम अगर यूज के हिसाब से देखें तो पहला तो था बेस्ड ऑन द टैंजिबिलिटी ऑफ गुड्स. टैंजिबिलिटी के ऊपर बेसिस पे गुड्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. नाउ ऑन द बेस्ड ऑन द पर्पस यूज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या पर्पस है, यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने का क्या पर्पस है. तो उसमें देखो दो होता है बेसिकली. एक होता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब बेसिकली इसमें भी दो तरीके हैं, कॉम्पोजिशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है. अब एग्जाम्पल में एंड, यहाँ पर जो पर्पस ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंड यूजर की बात किया जा रहा है, यानी प्रोडक्ट को फाइनली कौन यूज कर रहा है. प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर यूज करेगा, यानी कोई इंडिविजुअल यूज करेगा या कोई बिजनेस यूज करेगा. B2B सुना है ना सबने, B2B. तो बिजनेस भी कई बार एंड यूजर होता है और सेकेंड आपका कंज्यूमर भी होता है. तो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया गया है कि किस बेसिस पे कौन बेसिकली प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, एक टैंजिबिलिटी के बेसिस पे और एक एंड यूजर के बेसिस पे या फिर यूजर के बेसिस पे. तो कंज्यूमर जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? जो उनके डे टू डे और हाउस होल्ड्स के सामान होते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं, ब्रेड खरीद लिया, बिस्किट खरीद लिया, सोप खरीद लिया, राइट? कॉस्मेटिक्स, बेवरेजेस, कुछ होम अप्लायंसेस जो हम घर पे यूज करते हैं, ठीक है. तो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो इस टाइप के होंगे. जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट खरीदते हैं ये, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं रॉ मटेरियल खरीदेंगे इंडस्ट्रीज, राइट? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे. तो और फिर अगर किसी का लाइव स्टॉक का बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह है, तो फीडिंग के लिए वो क्या खरीदेंगे? वो जो उसके फीड्स होते हैं, एनिमल फीड्स वगैरह खरीदेंगे. तो यहाँ पर जो यूजर होता है या तो इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, या तो कोई बिजनेस होता है या कोई इंडस्ट्री होता है जो एंड यूजर होता है और वो दूसरे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को खरीदता है अपने बिजनेस के लिए, राइट? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ यूजर. तो यूजर के बेसिस में कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो दो इसका बेसिस हो गया. क्लियर हो गया? हम लोग एक्चुअली ना मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट डिसीजन को कर रहे हैं एंड ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है और आपके लिए इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. इसीलिए आज से मैंने बुक स्टार्ट किया. हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीजें काफी पढ़ी हैं बट आज से थोड़ा सा बुक बहुत जरूरी है फोकस करना, राइट. तो दूसरा जो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हो गया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट का लाइफ कितना उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द फंक्शनल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. फंक्शनल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए और एक होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर कह सकते हैं एक ड्यूरेबल होते हैं, एक नॉन ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल का मतलब जो चीज टिक जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और जिसको हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए.
जैसे के लिए एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया अलमीरा हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल, फिर क्लोथ्स हो गए, जो हमेशा 1 साल से जो ज्यादा चलता है मेजॉरिटी ऑफ चीज, या फिर कह सकते हैं वैसी चीजें जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम खरीदते हैं, उनको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन होते हैं? जो बेसिकली लॉन्ग टर्म तक हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको हमें कुछ दिनों में इमीडिएट यूज करना पड़ जाता है, राइट? So some goods are durable and some goods are non-durable. That is on the functional life उसका कितना है, यानी कितने दिन तक टिक सकता है, उसके बेसिस पे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल चीजें क्या होंगी? जैसे मैंने आपको बताया, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, हाउस, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल में जैसे आपके हो गए फूड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क, एग, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द नॉन ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं सकता है, राइट? तो यहाँ पर हमने 3 तरीके की क्लासिफिकेशन, जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरीकों को देखा, on the basis of tangibility, on the basis of uses and on the basis of durability, right? तो on 3 basis हमने प्रोडक्ट को जाना। अब एक 4th वाला है बेस्ड ऑन द इनोवेशन, यानी इनोवेशन के बेसिस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? एवरीवन नोस क्या होता है इनोवेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? क्या होता है आशुतोष इनोवेशन? मैम समथिंग न्यू, समथिंग to our न्यू, skills or knowledge. हाँ, something new, but the changes have been made in that particular goods, right? Like example के लिए फैन जो था, पहले फैन देखा था कैसा था? पहले फैन की मैं एक इनोवेटिव क्राइटेरिया स्टेज बताती हूँ। द अर्लियर द फैन वाज वेरी मच हेवी, बहुत हेवी और बहुत बड़े बड़े साइज के फैन होते थे। That was very much difficult to handle that product, मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से that was not good, ठीक है? फिर लाइट वेटेड फैंस आ गए, तो देयर वाज इनोवेशन फ्रॉम द हेवी वेटेड टू लाइट वेटेड, राइट? एंड नाउ द फैंस आर लाइक we can operate it with the remote. So if in any basic product there is any new thing was added in their quality or in their performance, then that is known as innovation. जब हम कुछ बदलाव लाते हैं और वो बदलाव जो होता है उस चीज तो मैम मॉडिफिकेशन भी तो वही ना हुआ मैम? मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, लाइक इनोवेशन इज समथिंग जो चीज बेटर वे में हो। मॉडिफिकेशन में श्योरिटी नहीं है कि जो आप उसको चेंज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, बट इनोवेशन इज समथिंग जो क्वालिटी को इनहांस करने में हेल्प करता है, राइट? जो क्वालिटी को इनहांस कर दे, कन्वीनियंस हो, कंज्यूमर के लिए इजी टू कैरी हो, तो हर चीज को, जो चीज एक बेटर और एक पॉजिटिव वे में जो चेंजेस आता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन। So now the 4th classification is on the basis of product innovation, right? अब innovation का क्या जरूरत है? The question arises why we need innovation in the products. Products में innovation की क्यों जरूरत है? क्योंकि to survive in this competitive environment, अगर हम marketing पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाने वाला, एक टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाले 20 कंपनीज हैं। अब 20 कंपनी में अगर आपको कंपटीशन करना है तो ऑब्वियसली आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता जब तक आप अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज ऐसा नहीं लेकर आते हैं जो कॉम्पिटिटर्स लेकर नहीं आया है, राइट? जब कॉम्पिटिटर्स वो नहीं लेकर आएगा, आप अपने आप को डिस्टिंक्ट शो करोगे तो आपके प्रोडक्ट का गुडविल बढ़ेगा, मार्केट में शेयर भी बढ़ेगा और कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट आपका परचेज करेगा। हम फैन के एग्जांपल टिकते हैं तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ फैन। कौन कौन से फैन के ब्रांड्स हैं? ल्यूमिनस, आई गेस, तूफान है, ल्यूमिनस है, बजाज, उषा, है ना, फिर क्रॉम्पटन है, ओरिएंट है, मतलब ये तो वो कंपनीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। आई गेस देयर आर सो मेनी ब्रांड, राइट? आशुतोष इज लुकिंग अपवर्ड कि कुछ बेटर कुछ दिखे, ही इज लुकिंग अप टू सीलिंग पे देख रहा है और कंपनी का नाम जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स, बट डू यू एवर थिंक कि लाइक अभी भी मार्केट जो है सबसे ज्यादा ल्यूमिनस और तूफान का आई गेस सबसे ज्यादा है, लाइक हर प्रोडक्ट में, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन होता है, या तो उसकी बेटर क्वालिटी, या तो उसका स्पीड, या तो उसका वारंटी, गारंटी, ड्यूरेबिलिटी, देयर आर मल्टीपल थिंग्स।
और इनोवेशन सिर्फ हम प्रोडक्ट पे नहीं करते, प्रोडक्ट के बेस्ड वाली चीजों पे भी करते हैं, ठीक है। जब हम टीपीसी पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, तो वहां पर ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो इनोवेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और एनवायरमेंट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में सस्टेन करने के लिए जरूरी है इनोवेशन, ठीक है। अब कभी भी कोई नया चेंज आता है तो तुरंत से दूसरी कंपनी भी उसको क्या करने की कोशिश करती है कि बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करती है, चेंज करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि इफ ही विल नॉट डूइंग दैट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। तो ये एक बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक इनोवेशन है। तो और दूसरा है आपका इमिटेशंस, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाए गए और उसी को देखते हुए दूसरी कुछ कंपनीज ने भी वैसे प्रोडक्ट बनाए। तो इमिटेशंस जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है पर्पस, कमिटमेंट पे, कॉम्पिटेंस ऑफ इमिटेटर पे, ठीक है। आप किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप पुअर इमिटेटर है, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को सेम देख रहे हैं और उसी टाइप के प्रोडक्ट बना के स्प्यूरियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, a pure imitator will end up in productive, deceptive, spurious, fake, copycat product, ठीक है। इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मान लो कि मैंने एक मोबाइल निकाला, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, मोबाइल छोड़ो, पेन की बात करते हैं। मोबाइल इज अ काइंड ऑफ कोर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। पेन बनाया, ठीक है। अब ये जो पेन मैंने बनाया है, ये जो ये मतलब बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा अलग है, इसका जो जेल है मतलब वाटर प्रूफ है, ये तो पहले आ चुका है, फिर भी स्टिल मैंने कुछ बनाया ऐसा कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनेगी, बहुत स्मूथ फ्लो है, एंड एवरीथिंग इज वेरी मच फाइन विद दिस पेन, and like my market share is increasing because the students are demanding my pen, right? Now some other companies, दूसरी कंपनीज भी ने भी मुझे देखा पेन ऐसा बनाते हुए और मेरा मार्केट डिमांड बहुत अच्छा है, तो उन्होंने भी कोशिश किया कि इस टाइप के पेन को बनाने का। लाइक देयर आर टू टाइप ऑफ इमिटेटर, या तो वो मेरे प्रोडक्ट को देखते हुए अपनी कंपनी के नाम पे कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब इससे बेटर बनाने की कोशिश करेंगे अपने ब्रांड नेम के साथ, राइट? तो वो कहते हैं, उसको कहते हैं हेल्दी इमिटेटर और गुड इमिटेटर, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट से सीखेगा, लेसन लेगा और कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा, इसको कहते हैं हेल्दी इमिटेटर। बट मेरे प्रोडक्ट को देख करके कुछ कंपनीज क्या करेंगी, मेरे ही कंपनी का नाम यूज करेंगे और इसी तरीके का स्प्यूरियस और फेक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि वो इसको कहते हैं पुअर इमिटेटर, जो मेरी कंपनी को कॉपी करेगी बिल्कुल सेम टू सेम और उसको जाके मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगी, तो इसको कहते हैं बैड इमिटेटर। यानी कि वैसे जो स्प्यूरियस गुड का मतलब होता है फेक, अनरियल, ठीक है, डिसेप्टिव गुड कहते हैं उसको, तो ये होता है बैड इमिटेटर। अब एक हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और कुछ इमिटेशंस की बात करते हैं, कौन कौन से ओरिजिनल प्रोडक्ट है और उसके बाद इमिटेशंस हैं। कॉपीकैट कौन कौन से कंपनी ने किया है देख लीजिएगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो था वो लाइफ बॉय था, लाइफ बॉय था ओरिजिनल प्रोडक्ट। कॉपीकैट हुआ है न्यू लाइन बॉय और निम्बा बॉय, इस टाइप के कुछ इमिटेशंस हुए हैं, ठीक है। एक था कोलगेट। तो नोवेलिटीज का मतलब क्या होता है कि जो जिसने उसी कंपनी से सीख कर कुछ अच्छा बनाया, तो वो नोवेलिटीज है। और कॉपीकैट का मतलब जो चीज उन्हें खराब किया मार्केट में, नाम पर्टिकुलर कंपनी का। लाइफ बॉय, नोवेलिटीज में निरमा बॉय आया, कुछ निरमा बॉय करके भी आया, और कॉपीकैट में न्यू लाइन बॉय, निर्बा बॉय। और अच्छा, आप लोगों ने देखा एडिडास और एडिबास, ऐसे लिखा होता है एडिडास और एडी, देखा है आप लोगों ने? देखा है एडिडास, DA की जगह BAS लिखा होगा उसमें, तो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉपीकैट, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और कुछ तो कंपनीज ऐसी होती है जो सेम टू सेम बना लेंगी प्रोडक्ट, उसको स्प्यूरियस प्रोडक्ट बोलते हैं। कभी आप फर्स्ट कॉपी हाँ फर्स्ट कॉपी बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन फर्स्ट कॉपी, कुछ तो फर्स्ट कॉपी जो होती है वो कम से कम क्वालिटेटिव भी होती है, कुछ तो इतनी खराब होंगी। जैसे एग्जांपल में बताती हूँ, व्हेन यू विल गो टू द दिल्ली, you just need to visit one Sarojini Nagar market. When you will visit there, like you will find multiple goods like that. जैसे एग्जाम्पल के लिए they will show you some watches and say that ma'am this is Rolex की घड़ी है, Rolex, just imagine how it's cost. Rolex की घड़ियां lakhs में आती हैं, lakhs में, and they are giving you for 200 or 500 and they are saying that ma'am ये तो सिर्फ
ये चोरी का माल है, दे आर सेइंग लाइक दिस, बट द रियलिटी इज नॉट दैट, दैट इज टोटली फेक प्रोडक्ट एंड दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ द गुड ब्रांड, दैट इज नोन एज स्प्यूरियस। और कुछ हम लोग भी यूज करते हैं, जो विमेन यूज करती हैं काजल एंड ऑल, जैसे आई एम यूजिंग लैक्मे, मेबलिन, तो वो सेम आपको जो गुड है वहां पर सेम आपको पैकेजिंग के साथ प्रोवाइड करेगा। यू कांट डिफरेंशिएट दैट विच वन इज द रियल वन, लाइक आपके हाथ में एक रियल वाला होगा और एक फेक वाला होगा, यू कांट एबल टू डिफरेंशिएट इट, एंड दे आर सेलिंग इट फॉर ओनली 50 रुपीज एंड द रियल कॉस्ट इज लाइक 175 और 200। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द स्प्यूरियस गुड। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट में और नोवेलिटीज एंड कॉपी कैट की हम जो बात कर रहे थे, इनोवेशंस एंड इमिटेशंस। इनोवेशन इज समथिंग जब आप कुछ नया लेकर आते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, बट आप उनसे लेसन लेते हैं, एक सीखते हैं, राइट, एक सीखना। और एक होता है सेम वही कॉपी गलत तरीके से उसको कॉपी करके मार्केट में सेल करना। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट में लाइफ बॉय की बात कर लिया। अब हम लोगों ने कोलगेट की बात करते हैं। कोलगेट में नोवेलिटीज में पेप्सोडेंट आया, यानी कोलगेट को टक्कर देने के लिए एक पेप्सोडेंट आया मार्केट में, और कॉपी कैट के नाम से कॉलेज नाम से एक टूथपेस्ट आया। निरमा देखो, ओरिजिनल प्रोडक्ट निरमा है और नोवेलिटीज में व्हील आया, और कॉपी कैट ने निर्भा है, नीमा है, नरीमा, ऑल दीज थिंग्स आर कॉपी कैट। सो देयर आर समथिंग, मतलब जहां पर आप इनोवेशन करते हैं, कुछ चेंज लेकर आते हैं, कुछ लोग कॉपी करते हैं, सीखते हैं, एंड उसमें भी दो हैं, पुअर है और एक गुड। तो ये सारे थे ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशंस एंड इमिटेशंस। तो इसको हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप दो बेसिस पे कीजिएगा, या तो आप खुद से कुछ नया लेकर आइएगा बिल्कुल डिफरेंट, जैसा कोई मार्केट में लेकर ही नहीं आया, तो फर्स्ट इनोवेशन आप कीजिएगा, बदलाव लाइएगा, या तो आप दूसरी कंपनीज का कॉपी करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसमें भी कुछ लोग तो उससे अच्छे चीजें बनाते हैं अपने ब्रांड के नाम से, और कुछ लोग सेम स्प्यूरियस और डिसेप्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, और कुछ लोग नाम भी बदल देते हैं, और कुछ लोग तो नाम भी नहीं बदलते। ये भी बता दो, जैसे इसमें तो बुक्स में सारे नाम बदले हुए हैं, बट कुछ तो सेम नाम से वही आपके प्रोडक्ट को नकली बना करके बेचते हैं मार्केट में। तो दैट आर स्पॉइलिंग द ब्रांड नेम एज वेल, एंड दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 तरीके से बेसिस पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला था आपका बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस या यूजर्स, on the basis of functional life, and on the basis of product development। किसी को कोई डाउट है इसमें? Who is going to tell me about all the 4 classification of product? Anyone who is going to tell me about the classifications of product? तो अगर अपने से नहीं बताना है तो चलो मैं ही पूछ लेती हूँ एक एक करके। यस उत्सव। यस मैम। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला फर्स्ट क्या था? मैम हम नहीं लिखे हैं। वाई? मेरा छूट गया तो मैम वहीं पे छोड़ दिया। ऑन द बेसिस ऑफ, यस मैम, ऑन द बेसिस। पहला क्या क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ, मैम फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। वेरी गुड। उसमें कौन कैसा था? हाँ बताओ। टेंजिबल और इनटेंजिबल। Intangible, the product that can be touched and feel, like refrigerator, any other equipment that can be seen and touched. And intangible, like medical services and other. Teaching and all, these are all comes under this. That is also known as service. Intangible is service. Yes. ठीक है, second, on the basis of, the second point is Durability. very good. आशुतोष वेट, हाँ उत्कर्ष बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में क्या क्या होगा बेटा? मैम वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में 2 होगा, एक ड्यूरेबल एक नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल। हाँ, ड्यूरेबल वो चीजें जो टिक जाती हैं लॉन्ग टर्म तक, नॉन ड्यूरेबल जो चीज ज्यादा दिन तक हम स्टोर या टिक नहीं सकती, इमीडिएट यूजेस के लिए होते हैं ज्यादातर वो सारी चीजें। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन, on the basis of, Abhishek,
अभिषेक बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ, On the basis of users, there are two types of users. One is consumer and other one is institution. इंस्टीट्यूशंस नहीं, इंडस्ट्रीज. Oh, sorry, in industries. And last one on the basis of innovation. उसमें क्या क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड इमिटेशंस. तो यहाँ पर 4 तरीके के हम लोगों ने किया. क्या चीज? बेसिकली 4 तरीके के प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी. तो यहाँ पर टैंजिबल और इंटैंजिबल होंगे प्रोडक्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर्स या ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, इसमें होंगे कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रीज. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल. एंड फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज इनोवेशन एंड इमिटेशंस. क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. यानी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का. सिग्निफिकेंस देखा जाए तो अगर हम कोई प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? मैम वो प्लानिंग ना, प्लान करना. क्या होता है बेटा उत्कर्ष? हम प्लान करते हैं ना कुछ करने से पहले, उसके प्रोज एंड कॉन्स सब देखते हुए. एग्जैक्टली. देखो एक्चुअली इसको स्ट्रैटेजी को कहते हैं तरीके, वेज. ठीक है, किस किस तरीके से हम बेसिकली प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या क्या तरीका है. तो कभी भी अगर हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस केस में वो प्रोडक्ट को सबसे पहले मार्केट फिट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फिट होने वाला है या नहीं होने वाला है. ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, देखो मैं तुम लोगों को कंसेप्ट बताया था, मार्केटिंग कंसेप्ट बताया तुम लोगों को मैंने. मार्केटिंग कंसेप्ट 1920 से पहले की बात है. पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्शन कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता था. प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मार्केट में प्रोडक्ट को बनाया जाता था, मार्केट में अवेलेबल कराया जाता था, सिर्फ और सिर्फ यही चलता था. यानी कि प्रोडक्ट किस तरीके का बनाना, कैसा बनाना, ये पूरी कंपनी पे डिपेंडेंट था. कैसा भी प्रोडक्ट बनाइए और मार्केट में अवेलेबल करा दीजिए, बल्क में और लो कॉस्ट में, यानी सस्ता रेट में, बल्क में, मार्केट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए. तो इसको हम कहते थे प्रोडक्शन कंसेप्ट. और ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, लगभग 1920 से पहले का. 1920 के बाद एक और नया कंसेप्ट आया जिसको हम प्रोडक्ट कंसेप्ट कहते थे. प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था कि मार्केटर्स ने थोड़ा रिसर्च करने का काम किया कि भाई प्रोडक्ट जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो. तो फिर मार्केट वालों ने, मतलब कंपनी वालों ने प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहांस कर दिया, लेकिन उन्होंने प्राइस पे ध्यान नहीं दिया. भाई सारे कंज्यूमर हाई प्राइस तो नहीं दे सकते क्वालिटेटिव प्रोडक्ट का, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बनाया और मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया. ये कंसेप्ट भी ज्यादा दिन नहीं टिका. फिर ऐसा लगा कि भाई आप प्रोडक्ट में कितना भी चेंज ले आओ, मॉडिफाई कर दो या फिर उसको अच्छे क्वालिटी का कर दो, लेकिन कंज्यूमर को जब तक प्रेशराइज नहीं किया जाएगा वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. तो उसके बाद फिर एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं सेलिंग कंसेप्ट. अब उस सेलिंग कंसेप्ट में क्या होने लगा कि बस एक ही एम होता था हर कंपनी और मार्केटर का कि प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कराओ. कैसा भी प्रोडक्ट हो, सेल्स प्रमोशन यूज करो, टेक्निक्स यूज करो, फ्री पे एक फ्री दे दो, डिस्काउंट दे दो, 20% एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट में बस सेल कराओ. तो दैट वाज सेलिंग कंसेप्ट. अब सेलिंग कंसेप्ट भी उतना दिन नहीं टिक पाया. उसके बाद क्या आया? मार्केटिंग कंसेप्ट. और मार्केटिंग कंसेप्ट को सबसे पहले समझने वाले कौन थे? यूएस के बिजनेस पीपल. उनको ये बात समझ आया कि अगर हम कितना भी प्रेशराइज करें कंज्यूमर को कि आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, लेकिन कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी मन की करेंगे और वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे. तो फिर अब लोगों के या कंपनी के दिमाग में आने लगा कि अब हम कैसा प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर आराम से खरीदे. तब ये सजेशन मिला AMA के द्वारा, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा, कि हमें प्रोडक्ट ऐसे बनाने चाहिए जो कंज्यूमर के नीड के हिसाब से हो. तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च कीजिए, कंज्यूमर की नीड को समझिए कि कंज्यूमर एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट चाहता है,
और उसके डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाइए। तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। और ये मार्केटिंग कंसेप्ट जो था वो काफी सालों तक चला, और क्योंकि कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा था तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत हाई हो गया और कस्टमर की लॉयल्टी भी इंक्रीज होने लगी। तो फाइनली बहुत सारी कंपनीज जो थे जिन्होंने ये कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, वो काफी जल्दी ही रेवेन्यूज और सेल्स उनका काफी इंक्रीज कर गया। लेकिन आफ्टर दैट एक बात आई कि कंपनीज तो प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बना रही है, मार्केट में सेल कर रही है, लेकिन वो क्या सोसाइटी को ध्यान में रख रही है? क्या वो इकोलॉजी का ध्यान रख रही है, एनवायरमेंट का ध्यान रख रही है? क्या वो CSR का काम कर रही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम कर रही है प्रॉपरली? क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है? तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में आने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट लाया गया, जहां पर आप एक सोशल वेलफेयर के साथ मार्केटिंग करेंगे। और इसी के तहत अगर आप अब आजकल देखिएगा तो बहुत सारी ब्रांड की ब्रांडिंग, मतलब जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, चाहे वो बाटा वगैरह हो, जब प्लास्टिक पे बैन लगा था और प्लास्टिक के ऊपर काफी ज्यादा आर्टिकल्स आने लगे थे, तो उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी पेपर बैग्स को अडॉप्ट कर लिया। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये स्टोरी था एक मार्केटिंग कंसेप्ट का। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहली स्ट्रैटेजी पढ़ रहे थे कि प्रोडक्ट जो है बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस होगा प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का, तो जो सबसे पहला पॉइंट था कि अचीव प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो मार्केट की नीड के हिसाब से हो, ठीक है, मार्केट में वो फिट हो जाए और वो आपके लॉन्ग टर्म तक वो आपके प्रोडक्ट मार्केट में टिक भी सके, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केट फिट, यानी पहला जो आप प्रोडक्ट लेकर आएंगे वो मार्केट पे पूरा रिसर्च कीजिए और कंज्यूमर के डिमांड को समझिए, मार्केट पे वो फिट हो रहा है प्रोडक्ट या नहीं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पहला ये प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी होगी। मार्केटिंग जो मैंने अभी तक पूरा कंसेप्ट बताया आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ? तो जब सेलिंग कंसेप्ट तक, देखो सेलिंग कंसेप्ट तक हम उसको ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहते हैं, एंड मार्केटिंग कंसेप्ट से जो आगे आए हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट, ये जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग के, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट तक ट्रेडिशनल एंड मार्केटिंग से आगे जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट है। सेलिंग कंसेप्ट तक जो चीजें थी दैट वाज नोन एज मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होता है कि जब आपकी दूरदर्शी, यानी मायोपिया का मतलब जिसकी आंख दूर की, मतलब नजर कमजोर हो। तो सेलिंग कंसेप्ट तक जो कंपनी होती थी वो दूर तक के बारे में नहीं सोचती थी। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप एंड ऑल, they are not thinking about the selling the product, they are not मतलब selling product in the long term, they are not thinking about the loyalties, they are not thinking about the relationship, they are not thinking about the long term gains। वो क्या करती थी, सिर्फ प्रेजेंट में देखती थी प्रोडक्ट सेल हो जाए, बट मार्केटिंग कंसेप्ट ने इस पूरे सिचुएशन को चेंज किया। तो मार्केट फिट के हिसाब से प्रोडक्ट हमें बनाना है, पहला चीज। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या होगा, सेकेंड स्ट्रैटेजी था encourage innovativeness। स्ट्रैटेजी लिख लीजिए, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में सबसे पहले लिखिए क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके लिख लीजिए। अच्छा, 2 लाइन 3 लाइन ऊपर में बचे हुए हैं आप लोगों के, जब आप सिग्निफिकेंस लिखने के बाद गैप्स हैं तो उसमें 2-3 लाइन लिख लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। लिखते हैं मीनिंग, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, उसके बाद सिग्निफिकेंस करते जाएंगे। सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट तो बता ही दिया, मार्केट फिट। चलिए, पहला है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, लिखिए, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी refers to the long range competitive plan, product strategy refers to the long range competitive plan involving decisions on products, involving decisions on the product line, product line and product mix
and product mix to make proper utilization of resources and achieve marketing goals Product strategy refers to the long range competitive plan involving decisions on products, product line and product mix to make proper utilization of resources and achieving marketing goals. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को आप किस तरीके से बनाइएगा, किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल कराइएगा, आपके पास जितना रिसोर्स है उसको आप कैसे यूटिलाइज कीजिएगा प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करने में, प्रोडक्ट मिक्स में इंट्रोड्यूस करने में। अब ये जो टर्म्स आ रहा है प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक चार्ट में दिखाऊंगी, बहुत इजीली उससे समझ आ जाएगा प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। सिग्निफिकेंस जो है उसमें मैंने एक पॉइंट करा दिया है, बाकी में 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, वो भी हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो प्रोडक्ट, अच्छा एक बात बताओ, समझ में आया कि सारा गोल हो गया?